افواج پاکستان کو افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ افغانستان دوحہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ایسی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ ایسے حملے قطعاً ناقابل قبول ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کوئٹہ گریجن کا دورہ، حملے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار نے زخمیوں کے عزم و حوصلے اور قوم کے لیے قربانیوں کو سراہا۔ شہدائے یوب کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہر مسئلے کی تلاش کا حل حکومت کے سر ڈال دیتے ہیں۔ معاشرے کی بہتری کے لیے سب کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا قومی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ آئین میں بنیادی حقوق کا مقصد عوام کو خوشحال رکھنا ہے۔ آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ ریاست پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کو اور بھی کام ہوتے ہیں۔ ایران اور بنگلہ دیش آبادی پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ فرد کی خوشی خاندان کی خوشی میں مضمر ہے۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ماں اور بچے کی دیکھ بھال کرے۔ جب پاکستان بنا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس وقت عام لوگوں نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کو پیسے دیے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبے کا افتتاح، افواہیں پھیلانے والوں کو مؤثر جواب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افتتاحی تقریب سے خطاب، منصوبے کو پاک چین تعلقات میں سنگ میل قرار دے دیا۔ کہا چشمہ 5 باہمی تعلقات کا عکاس ہے۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی نے منصوبے کو محفوظ قرار دیا۔ مزید بولے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا، ترقی کے لیے مسائل کا حل نکالنا ضروری ہوگا۔ ہنر مند لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے سے تجارتی خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ تعلیم کسی اور ایک طبقے کا نہیں، سب کا حق ہے۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو جان نچھاور کرنے کو تیار۔ 12 جولائی کو آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 بلین کی منظوری دی۔ پاکستان کو فوری $1 ارب 20 کروڑ جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ آئی ایم ایف ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے فوری کوششوں کو سہارا دے گا، پاکستان کے لوگوں کی مدد کے لیے اہم ہوگا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ مستحکم پالیسی پر عمل درآمد اہم ہے، سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود ڈالر کی بڑی چھلانگ، کاروباری ہفتے کے آخری روز امریکی کرنسی کی قدر میں بڑا اضافہ، اوپن مارکیٹ میں $4 مہنگا ہو گیا، $284 میں فروخت ہوا۔ انٹر بینک میں $1.14 کا اضافہ، $277.60 پر بند ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، کاروبار کے آغاز پر تیزی کے رجحان کے بعد 100 انڈیکس میں کمی -198 پر پہنچ گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کے بڑے جھٹکے کی تیاری، بنیادی ٹیرف میں $4.96 فی یونٹ اضافے کا فیصلہ۔ نیپرا کی جانب سے قیمت میں آج ہی اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ اوسطاً ٹیرف $24.82 سے بڑھ کر $30 تک ہو جائے گا۔ ٹیرف میں اضافہ آئی ایم ایف شرائط کے تحت کیا جائے گا۔ اضافہ یکمشت یا مرحلہ وار ہوگا، فیصلے پر مشاورت جاری ہے۔ ملک میں آٹا ایک بار پھر غائب، مہنگی چینی نے بھی بے چینی بڑھا دی۔ ادارہ شماریات کی دستاویز میں ایک بار پھر بڑھتی مہنگائی کا اعتراف کر لیا گیا۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3200 تک جا پہنچا۔ بہاولپور میں $3100 میں بکنے لگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں قیمت 3066 سے بڑھ گئی۔ کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں چینی فی کلو $150 تک پہنچ گئی۔ خضدار میں $145 کلو میں دستیاب۔ دیگر شہروں میں بھی قیمت 135 سے $140 فی کلو ہو گئی۔ ایک ہفتے میں مہنگائی کی مجموعی شرح 3% اضافے سے 28.9% تک جا پہنچی۔ 1 2 نہیں 21 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔
आम इंतखाबात बर वक्त होंगे, जो भी निगरान सेटअप आया इत्तफाक राय से आएगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी में बात तय हो गई है। बोल न्यूज दुबई मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहत पर बात हुई, फैसला किया गया निगरान हुकूमत में ज्यादा हिस्सा नून लीग का होगा, दीगर जमातों को तनासुब से हिस्से मिलेंगे। नाम वक्त से पहले न मीडिया पर आएंगे न पार्टी मीटिंग्स में। निगरान हुकूमत का फोकस जल्द अज जल्द इंतखाबात पर होगा। असम्बलियों की तहलील के मामले पर नून लीग में मुशावरत जारी। 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दे दी गई। वज़ीर आज़म इत्तेहादी कायदीन से निगरान सेटअप पर मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म और काबीना का फैसला मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ रवा माह के आखिर में मुशावरती अमल मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब में तमाम हलकों में इंतखाब लड़ेंगे। नून लीग ने पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। राना सनाउल्लाह का ऐलान। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। इंतखाबी सरगर्मियों के लिए आज तंजीमी इजलास तलब कर लिया। मजीद बोले, कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट की बात हो सकती है। एक फितने ने मुल्क की सियासत को तकसीम किया। इंतकाम और गालम गलोच की सियासत का खात्मा करेंगे। अव्वलीन तरजीह मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। सिंध का निगरान वजीर आला कौन होगा? पीपल्स पार्टी की अहम बैठक जल्द बिलावल हाउस में होगी। 3 नामों पर गौर किया जाएगा। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह का नाम शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मोहम्मद अली शेख के नाम पर भी गौर होगा। फैसला बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सामान अपनी रिहाइश का मुंतकिल कर दिया। निगरान हुकूमत के लिए अपोजिशन भी मुतहर्रिक। वजीर आला सिंध को अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का खत लिखा। निगरान वजीर आला के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाए। एमकेएम ने राना अंसार को सिंध असम्बली में कायदे इख्तिलाफ नामजद कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि शहरी और दही सिंध की खलीज को खत्म करना है। पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। सिंध असम्बली में इस वक्त कोई कायदे इख्तिलाफ नहीं, इस खला को पूरा करने की जरूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा असम्बलियां अपने इख्तिताम की तरफ जा रही हैं। असम्बलियों की तहलील से कबल अहम फैसले होने हैं। आइंदा निगरान सेटअप की तकर्री के लिए राना अंसार एमकेएम की नुमाइंदगी करेगी। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकला की इस्तदा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। समाअत के आगाज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया। आज आपने दलाइल देने हैं। वकील साद हसन ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज दलाइल देंगे। अमजद परवेज आज घरेलू मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकेंगे। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान से मुकालमा किया। आप आज कल बहुत मसरूफ हैं, अमजद परवेज आज पेश नहीं हो सकते। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे हैं। अदालत ने करार दिया पीर को दिन 11 बजे नई इमारत में समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई से जीआईटी की तफ्तीश। 9 मई वाकयात से मुतालिक सवालात वीडियोस भी दिखाई गई। 8 मार्च और 9 मई को जमान पार्क से ऑपरेट होने वाले रवाबित के बारे में शवाहिद दिखाए गए। जराए कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जीआईटी के सवालात पर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जीआईटी ने जवाबात और बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। अदालतें मुल्जिमों का इंतजार नहीं करती। पहले भी केस कॉल हुआ, अब दोबारा कॉल हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक स्पीकर असद कैसर की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के आगाज पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, किधर हैं असद कैसर? मुआविन वकील ने यकीन दहानी कराई, थोड़ी देर में आ रहे हैं। अदालत ने मकालमे में कहा 9:30 बजे का वक्त था, मुल्जिम को 7:30 बजे यहाँ होना चाहिए था। हाई कोर्ट का कोई एहतराम है? ये कौन सा तरीका है? साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ स्वाबी में मुकदमा दर्ज किया गया था। असद कैसर ने हिफाजती जमानत के लिए अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी की बिना पर खारिज कर दी। परवेज इलाई की थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने परवेज इलाई को
हिरासत करने या किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, रासिक इलाही की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला सुनाया। चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईदारा ने दलाइल ये दिए कि दलाइल में कहना था जेल से बाहर आने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब की दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है। इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है। मजहबी सियाहत पर बुद्ध मत सिंपोजियम इंतहाई कामयाब रहा। वजीर आजम के मुशीर रमेश कुमार कहते हैं सिंपोजियम में शिरकती का इजहार किया। मजहबी मकामात की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की शिद्दत बरकरार। शोरकोट में बाहू ब्रिज के मुकाम पर दरियाए चनाब में सैलाब से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया। जिला के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना सैलाब का खतरा बढ़ गया। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुजफ्फरगढ़ में पानी में इजाफे से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। नशेबी बस्तियां तेजी से मुतासर होने लगी। दरियाए रावी मारीपतन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कसूर और उकाड़ा में कई देहात ताहाल ज़ेरे आब। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। कोट मिठन के मुकाम पर पानी 2,10,000 क्यूसेक है। मुल्क में मानसून का नया स्पेल, कई शहरों में बादलों का खेल। फैसलाबाद, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। 17 जुलाई तक पानी खुलकर बरसेगा। इस्लामाबाद में हल्की और तेज बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने बता दिया नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी तबाही ला सकती है। कराची में गर्म हवाओं का राज बरकरार। महकमा मौसमियात ने 20 जुलाई के बाद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। पेशावर पुलिस ने दुश्मनों का वार नाकाम बना दिया। मतनी पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से हमला किया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकारों ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई से हमलावर उल्टे पैरों भाग निकले। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर दहशतगर्दों की तादाद 8 से 10 थी। 2 अतराफ से फायरिंग का तबादला 20 से 25 मिनट जारी रहा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सीसीपीओ पेशावर ने भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पुलिस जवानों की तारीफ की। उनका कहना था कि किसी को अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। जिला कुरम के मकीनों ने सुख का सांस ले लिया। जमीन के तनाज़े पर कई रोज से जारी फायरिंग थम गई, कशीदगी कम हो गई, हालात मामूल पर आने लगे। 7 रोज से जारी झड़पें खत्म हो गईं। फायरबंदी के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया। जरगा में फरीकें ने 1 साल तक फायरबंदी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। तमाम मोर्चे खाली कराकर फोर्सेज और पुलिस के हवाले कर दिए। कुरम में मुसल्लह तसादुम में 9 अफराद जान बहक और 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। मुल्की तामीर व तरक्की अव्वलीन तरजीह। मिशन मईशत में बोल हुकूमत के हम कदम। पाक IMF डील के मुस्बत असरात, कर्ज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, बना बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का मौजू, जिस पर मुआशी माहिरीन ने राय दी। मुआशी माहिर मियां जाहिद हुसैन ने IMF डील को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। साबिक चेयरमैन आबाद अब्दुल करीम हादी ने भी हुकूमती इक़दामात को सराहा। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल ने मुआशी बहाली के सफ़र में अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बोल के खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत, रोजाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। लाहौर में मुलाजमीन का 5वें रोज भी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में कम इजाफा किया। सरकारी मुलाजमीन सरकारी उमूर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर हुकूमत की तरफ से नज़रअंदाज किया जा रहा है। फैसलाबाद में भी ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की हड़ताल, दफातर की तालाबंदी। पंजाब हुकूमत से वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा।
कराची में CGD अहलकार की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। बोल न्यूज़ की खबर पर DIG CGD ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुबैना अहलकार ने शहरी को 2 कमसिन बच्चों समेत अगवा किया, मोबाइल में बिठाकर घुमाता रहा, घर वालों को फोन करके 1.5 लाख लाने का कहता रहा। बच्चों को 3 घंटे बाद मार्केट में छोड़ दिया गया। रेहान से चेक्स पर साइन कराए गए। रात गए 3 तलवार के करीब छोड़ दिया। DIG जुल्फिकार लारिक ने साफ कह दिया, कोई अहलकार मुलव्वस पाया गया तो इसकी महकमे में कोई जगह नहीं। बोल की काविशें बारावर साबित हुई। ऑनलाइन कर्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग, कार्रवाइयों में तेजी आ गई। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने रावलपिंडी से 9 कारिंदे धर लिए। लोन ऐप्स माफिया के दफातर सील करते हुए दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और सिम्स कब्जे में ले ली गईं। 19 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक दफातर से शहरियों से राब्ते किए जाते थे। मुल्जिमान को रोज 100 से 150 कॉल्स का टास्क दिया जाता। ऑनलाइन कर्ज स्कीम के नाम पर ब्लैकमेलिंग और शहरी की खुदकुशी का मामला बोल सामने लाया था। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में 2 दफातर सील किए गए। खुदकुशी करने वाले शहरी के घर जाकर भी तहकीकात की गई। सक्खर में सफाकियत की इंतहा हो गई। फैक्ट्री में काम के दौरान 2 मजदूरों में झगड़ा। एक मजदूर मुराद अली ने दूसरे मजदूर मोहम्मद नवाज को कत्ल करके लाश जला दी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों मजदूर गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में साथ काम करते थे। कत्ल में मुलव्वस मुलजिम मुराद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। नोडेरो के करीब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में खातून और नौमौलूद समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक रत्तोडेरो के करीबी गांव से है। लाशें नोडेरो अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। नामवर बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेराल्ड ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का भांडा फोड़ दिया। जुलाई के शुमारे में मोदी सरकार ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, मजहबी तकसीम, नस्ल परस्ती और गिरते सहाफती मयार पर सवालात उठा दिए। लिखा कि अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर मोदी की मुजरमाना खामोशी की बुनियादी वजह इंतहा पसंद अक्सरियत की खुशनुदी है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद की मज़म्मत कर दी। नस्ली और मजहबी तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। इस आज़म का भी इजहार किया कि भारत में आज़ादी इजहार राय और मजहबी आज़ादी पर कदम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हिंदू अक्सरियत पसंदी की नफरत अंगेज़ पॉलिसियों पर तशवीश है। यूरोपीय हुकूमतों और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया, भारत से दरमियान तजारत और शराकतदारी को इंसानी हुकूक से मुंसलिक किया जाए। यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे देने का मामला। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। मॉस्को ने तैयारों की मुमकिना फरहमी को एटमी खतरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन को फाइटर जेट की फरहमी इंतहाई खतरनाक होगी। यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की फरहमी से रूस से बराह रास्त तसादुम का खतरा बढ़ जाएगा। भारत की शिमाली रियासतों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली डूब गई, हर तरफ पानी ही पानी। अहम शाहराएं डूब गईं। सुप्रीम कोर्ट भी ज़ेरे आब। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज है। दरिया जमुना में पानी की सतह खतरे का निशान उबूर कर गई। वज़ीर आला नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत से दरिया में मजीद पानी न छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा, आफत से निमटने के लिए भारतीय फौज की मदद दरकार है। हादसात में भी अब तक 100 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। किबला रुख का तयन करने के लिए सूरज कल बैतुल्लाह के ऊपर से गुजरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्लाह की जानिब होगा। बैतुल्लाह का साया नहीं होगा, जिससे किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। जमीन पर एक छड़ी नमूदार होगी या किसी इमारत के कोने का इंतखाब करेंगे।
जैसे ही ये वक्त आएगा साया का एक खत खींच देंगे, यही किबला रुख होगा। एशिया कप कब और कहां होगा, शेड्यूल में मुसलसल ताखीर। पीसीबी हुकाम और एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक दुबई में तलब कर ली गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ आज डरबन से दुबई पहुंचेंगे। कल और इतवार को एसीसी ऑफिशियल्स के साथ शेड्यूल पर बात करेंगे। एशिया कप के वेन्यूज बढ़ाने पर ब्रॉडकास्टर्स को दुश्वारी का सामना है। एशिया कप का मुकम्मल शेड्यूल ताखीर के बाद पीर को जारी किए जाने का इम्कान है। वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम है, कोई वजह नहीं कि फाइनल तक रसाई हासिल ना कर सकें। बूम बूम शाहिद आफरीदी बाबर 11 की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद। कहा, हमारी बॉलिंग, बैटिंग और स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी टीम में ज्यादा तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं है। शाहिद आफरीदी का कहना था कि उनकी टॉप 4 टीमों में पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तमाम टीमों के कप्तानों में तकरीबन एक जैसे स्किल्स होते हैं, लेकिन मैं बाबर आजम को बैक करूंगा। खोए हुए दांत दोबारा पाएं, बुढ़ापे में जवान हो जाएं। जापानी साइंसदानों ने दांतों से महरूम अफराद के लिए दवा तैयार कर ली। तजुर्बा जारी, साइंसदान अगले साल इंसानी आजमाइश का हिस्सा बनाने के लिए पुरअज़्म। मार्केट में दस्तयाबी नताइज से मशरूत करार दे दी। और हिमायत अली शायर का 97वां यौम पैदाइश। अदबी सफ़र का आगाज अफसाना निगारी से किया, बाद में शायरी की जानिब राग़िब हुए। 1950 के अवाइल में रेडियो पाकिस्तान कराची का हिस्सा बने। 60 के अशरे में पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में बतौर गीतकार कदम रखा और बहुत से अवार्ड्स हासिल किए। 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। 15 जुलाई 2019 को कनाडा में वफात पाई। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।